but during the summer they do not foresee this catastrophe or remember how nearly it befell them in the previous winter. With human beings, the matter is otherwise. I doubt whether the percentage of birds that will have died of hunger during the present winter is as great as the percentage of human beings that will have died from this cause in India and Central Europe during the same period. 46-47 की बात हो रही. But every human death by starvation is preceded by a long period of anxiety and surrounded by the corresponding anxiety of neighbors. ठीक है? We suffer not only the evils that actually befall us, but also those that our intelligence tells us we have reason to fear. ये बात तो बिल्कुल सही है कि हम सिर्फ उन्हीं आपदाओं से पीड़ित नहीं होते जो हमारे ऊपर आपदा आती है, बल्कि उसकी जो घबराहट होती है, चिंता होती है, उससे ज्यादा हम सफर करते हैं. ठीक है? We suffer not only the evils that actually befall us, but all those that our intelligence tells us we have reason to fear. The curbing of impulses to which we are led by forethought averts physical disaster at the cost of worry and general lack of joy. I do not think that the learned men of my acquaintance, even when they enjoy a secure income, are as happy as the mice that eat the crumbs from their tables while the erudite gentlemen snooze. In this respect, therefore, I am not convinced that there has been any progress at all. बहुत बढ़िया दिया है. क्या कह रहा है कि अमीर लोग जो होते हैं, ठीक है, वो जब अपने वो जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह पे खा करके जो छोड़ देते हैं, उसी को रात में आ करके माइस जो है फ्रीली खाते हैं, वो कितना फ्री फील करता है. लेकिन अमीर लोग पास पैसा चाहे जितना हो, हर समय एंजाइटी और वरी में रहते हैं कोई ना कोई चीजों को लेकर के. तो एक्चुअली कोई समस्या हमारे ऊपर कितनी पड़ी उससे हम ज्यादा प्रभावित नहीं थे कि समस्या कितनी आ गई, बल्कि उस समस्या के बारे में हम जब सोचते हैं, ओवरलोड लेते हैं दिमाग पे उसका, तब हमको उसका असर पड़ता है. ये सुना बात समझ में आई? हाँ. So the birds die of hunger in winter because they do not move to warmer places. People do not feed them. They do not get the food of their choice. They are too young to get the food. Which one is correct? Sir, A option. कौन सा? The A option, sir. A option, yes. बाकी तीनों पॉसिबल ही नहीं. A option. 11th का नोट करिए, मैं नोट नहीं कर रहा हूँ. नोट कर दूं क्या? 11th का A. Okay. Then the birds do not foresee the catastrophe because they cannot predict an accident, overlook a difficult situation, cannot expect a sudden disaster, ignore the problem. क्या होगा? Sir, C option, cannot expect a sudden disaster. Cannot expect a sudden disaster. A क्यों नहीं होगा? Cannot predict an accident. और लोग भी जवाब दीजिए भाई. करें या पैसेज की नहीं, पहले तो ये बताइए. मेरी बात सुनिए, आप लोगों की डिमांड है कि हर रोज पैसेज कराइए. पैसेज मेरे पढ़ के और आंसर दे देने से आपका कुछ नहीं होने वाला. पैसेज को आप लोग खुद से घड़ी देख करके पढ़ने की आदत डालिए. एक एक पैसेज जो एक बार हम पैसेज दे देते हैं ग्रुप में, उसको 2-2 बार 3-3 बार पढ़िए, जो एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं. क्योंकि जब तक आप पैसेज पढ़ने का एक हैबिट नहीं बनाएंगे और स्पीड नहीं बनाएंगे, तब तक बात नहीं बनेगी. और आप देख रहे हैं बिहार के एग्जाम में लंबे लंबे पैसेज पूछे हैं. तो जिनको पैसेज पढ़ने की आदत नहीं है, स्पीड नहीं है, ठीक है, वो तो पैसेज के साइज देख के पहले घबरा जाएंगे, वो पहले एंजाइटी में आ जाएंगे. ठीक है, बताओ भाई क्या बेटा? द बर्ड्स डू नॉट फोरसी द कैटास्ट्रॉफी पहले लाइन में है क्या? But during the summer they do not foresee the catastrophe or remember how nearly it befell. हाँ, बिल्कुल सही बात है, वही है. ठीक है. कौन सा? It cannot expect a certain, cannot predict an accident. इसका तो आंसर फसाऊ लग रहा है. कोई जवाब दो भाई. रूपांजलि मैडम करी हैं, जवाब दीजिए.
सर आज नहीं कर पाए हम। सर ये दिया है ना सर, तो थर्ड लाइन में सर हाउ नियरली इट बिफेल देम। हाँ नहीं वो तो ठीक है, पर इसका आंसर कैसे होगा? कैनॉट, प्रिडिक्शन की बात तो नहीं, ओवरलुक का डिफिकल्ट, कैनॉट एक्सपेक्ट, इग्नोर भी वो नहीं करते, सी ही आएगा। सी रखिए, बाद में डाउट होगा तो देखा जाएगा। 13. Human beings cannot be happy because they do not get time to enjoy, worry too much about their work, may be possible, are not healthy, नहीं, worry too much about future, D. फोर्थ ना, चौथा? हाँ ठीक है। Which one of the following is the antonym of the word erudite? Antonym क्या होगा? सर बी ऑप्शन, ill-educated, ill-educated, B option, ठीक है। उसके बाद which one of the following is the central theme of the passage? Life of the birds and the mice, नहीं, starvation in India and Central Europe, नहीं, progress of mankind या disaster in 1946-47, क्या होगा central theme? C option. बी ऑप्शन सर प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड। थर्ड, यस, थर्ड। ध्यान से समझिए, अगर आप पूरे पैसेज को देखेंगे तो उसमें बात कही गई है डिजास्टर की, वो एक अलग बात है, पर डिजास्टर की बात कहते हुए, डिजास्टर की बात करते हुए पैसेज में कहना क्या चाहा है कि इंसानों का प्रोग्रेस कितना हुआ है। तो ध्यान से देखिए लास्ट लाइन, इन दिस एस्पेक्ट देयरफॉर आई एम नॉट कन्विंस्ड दैट देयर हैज बीन एनी प्रोग्रेस एट ऑल, ठीक है, इसका सी होगा। और एक बात और समझिए, सुनिए, हाँ ठीक है, सुनिए मेरी बात, जैसे आप लोगों के इंटरमीडिएट वगैरह में आंसर पैसेज का थीम भी लिखने को आता है ना, कि इसका टाइटल क्या है या सब्सटेंस क्या, थीम क्या है ना, ठीक है। उसी तरह जो प्रेसी राइटिंग होती है आईएएस में पूछा जाता है, आईएएस मेंस एग्जाम में आता है प्रेसी राइटिंग। बाय सर। हाँ ठीक है, अब मैं इस की बात करूंगा, ठीक है, ओके। सुनिए, तो आईएएस मेंस के एग्जाम में प्रेसी राइटिंग आता है और असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में प्रेसी राइटिंग आता है। तो प्रेसी राइटिंग में जो है 1 नंबर उसके टाइटल पे होता है। तो जो पैसेज आपको दिया जाएगा 300 वर्ड में, पूछेगा इसका टाइटल क्या है, तो टाइटल पकड़ने का तरीका, ठीक है, जो लोग सीबीएसई में कभी पढ़ाए होंगे इंटरमीडिएट को, उसमें भी आता है नोट मेकिंग, और नोट मेकिंग में टाइटल दिया जाता है, ठीक है। तो टाइटल या तो फर्स्ट 2 लाइन में मिल जाएगा आपको या लास्ट 2 लाइन में मिलेगा। ध्यान सुनिए, टाइटल या तो फर्स्ट 2 लाइन में मिल जाएगा या लास्ट 2 लाइन में मिल जाएगा, इसकी पॉसिबिलिटी है, वही मिलेगा जरूरी नहीं है। और अगर फर्स्ट 2 लाइन लास्ट 2 लाइन में नहीं मिला तो फिर पूरे पैसेज को आपको बड़े इत्मीनान से पढ़ के समझना पड़ता है कि इसका टाइटल होगा क्या। तो जैसे अब यही पैसेज था, इसकी डिस्क्रिप्शन को आप देखें तो ऐसा लगेगा कि कैटास्ट्रोफ के बारे में बात किया गया, या कोई जो फैमिन हुआ था, जो भी हुआ था, डिजास्टर हुआ था, उसकी बात हो रही है। पर उसके बाद के माध्यम से वो यही कहना चाहता है, ठीक है, कि इंसानों के लाइफ में कोई प्रोग्रेस हमको देखने, भाई प्रोग्रेस का क्या मतलब है कि आपके पास पैसा है तो सुकून की जिंदगी जिए, लेकिन फिर भी आप वरी रहते हैं। आपसे बढ़िया तो वो चूहे हैं जो रात को आकर के आपके जूठे खाना खा जाते हैं, उनको किसी बात की चिंता नहीं होती है, राइट। तो हमारे पास सब कुछ होने के बाद भी अगर हम रो रहे हैं, तकलीफ में है, चिंता है, कंपैरेटिव लाइफ देख रहे हैं कि, है ना, कि अमिताभ बच्चन तो हमसे बढ़िया लाइफ जीते हैं, शाहरुख खान तो हमसे बढ़िया लाइफ जीते हैं, इन लोगों की जीवन में बड़ा ऐश है ना, ठीक है, तो फिर हम कहाँ प्रोग्रेस किए। आई बात समझ